آج کی اس گہری گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی کی کتاب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت، غم اور معراج پر اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج تیسرا حصہ ہے اور ہم تیسرے باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ وہ دور ہے جو حبشہ کی ہجرت کے بعد سے مدینہ کی طرف ہجرت تک کے واقعات پر محیط ہے۔ بالکل۔ آج جن اہم واقعات پر ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے عام الحزن یعنی غم کا سال ہے۔ جی، جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ہاں، پھر طائف کا وہ مشکل سفر اور وہاں کے واقعات، بہت ہی تکلیف دہ، اور اس سے ملنے والے اسباب۔ پھر ظاہر ہے اسراء و معراج کا عظیم معجزہ، جی ہاں، نماز کی فرضیت، اس کی حکمت، اور آخر میں وہ ملاقاتیں جو مدینہ کے قبائل اوس و خزرج سے ہوئیں اور عقبہ کی بیعتیں جنہوں نے ہجرت کی راہ ہموار کی۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ واقعات دہرا دیں، بلکہ ان کے اندر جو حکمت ہے، جو اسباب ہیں، ان کو سمجھنا ہے نا؟ جی، جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ آج بھی، بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے عام الحزن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، آپ کہہ لیں ذاتی طور پر بہت بڑے صدمے پہنچے۔ جی، پہلے آپ کے چاچا ابو طالب، جی، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھے، بہت مضبوط سہارا تھے۔ ان کی زندگی میں قریش بھی نا تھوڑا لحاظ کرتے تھے، کھل کر تکلیف نہیں پہنچا پاتے تھے۔ صحیح، تو ان کا جانا ایک بہت بڑا خلا تھا، بلا شبہ۔ اور ان کی وفات کے فوراً بعد ہی قریش کی طرف سے جو تکالیف تھیں وہ بہت بڑھ گئیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ کی بات تھی، شدید رنج تھا۔ اور پھر ایک اور بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں۔ جی، بستر مرگ پر بھی تلقین کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میری قوم کیا کہے گی کہ مرتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں ماخذ ایک اہم نقطہ نکالتا ہے جی، کہ کبھی کبھی جیسے دعوت کے شروع میں جب حالات کمزور ہونا تو کوئی غیر مسلم رشتہ دار بھی اگر وہ بااثر ہے تو اس کی حفاظت فائدہ دے سکتی ہے۔ جی، یہ ایک نقطہ ہے، بشرط کہ دائی خود ان کے غلط عقائد کی تائید نہ کرے۔ بالکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا ابو طالب کی وفات پر، وہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنی محبت تھی، کتنی قدردانی تھی ان کی حفاظت کی۔ جی ہاں، بہت گہری محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ ہاں، لیکن پھر وہ آیت نازل ہو گئی۔ جی، سورۃ التوبہ کی آیت 113، جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، چاہے وہ قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس سے پرہیز کیا۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ تعلقات اپنی جگہ، اللہ کا حکم اپنی جگہ۔ صحیح۔ ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد اسی سال ایک اور بہت بڑا صدمہ، جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھیں، وہ تو آپ کی سب سے پہلی، سب سے مضبوط حمایتی تھیں، رازداں تھیں، مشیر تھیں، ہر پریشانی میں آپ کا حوصلہ بڑھانے والی، قریش کی تکلیفوں پر آپ کا دکھ بانٹنے والی۔ ان کی وفات تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اور بڑھا گئی۔ اسی لیے تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ یقیناً۔ اور حضرت خدیجہ کی وفات وہ صرف ایک ذاتی نقصان نہیں تھا، وہ تو پوری تحریک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ ماخذ بھی اس پر زور دیتا ہے نا کہ ایک نیک سمجھدار بیوی کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ بہت اہم، خاص طور پر اگر شوہر دعوت کے کام میں لگا ہو، وہ اس کی مشکلیں آسان کرتی ہے، اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، ہمت دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی مثال تو بہترین مثال ہے۔ وہ تو سب سے پہلے ایمان لائیں، اپنا سارا مال دے دیا اسلام کے لیے، ہر مشکل میں ساتھ رہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ ہاں، ان کی خوبیاں بیان کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ بالکل، وہ بخاری کی روایت ہے نا حضرت عائشہ والی، جی جی، کہ انہیں کسی اور زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر، حالانکہ انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ یہاں تک کہ جب بکری ذبح کرتے تو کہتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو۔ ایک بار حضرت عائشہ نے کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इन्नी कद रुज़्क़तु हुब्बहा, यानी मुझे उनकी मोहब्बत अता की गई है। सुभान अल्लाह, कैसा मकाम था उनका। जी तो ये दो बड़े सहारे जब नहीं रहे, चाचा अबू तालिब और हजरत खदीजा का, तो मक्का में तो हालात बहुत ही खराब हो गए होंगे। जी, जुल्म और सितम बहुत बढ़ गया, मुखालफत शदीद हो गई। तो ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं और दावत दी जाए, कोई नई जगह तलाश की जाए। और इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। मक्का से कोई 60 मील दूर है। जी, वहाँ बनु सकीफ का कबीला था, ताकतवर कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि शायद वो लोग बात सुन लें या पनाह दे दें, लेकिन वहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्ट हो गया। बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा। उनके सरदारों ने न सिर्फ बात नहीं सुनी बल्कि बहुत बुरी तरह रद्द किया। और सिर्फ रद्द नहीं किया, बल्कि शहर के जो ओबाश किस्म के लोग थे, लड़के थे, उनको पीछे लगा दिया। जी, उनको उकसाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाजें कसें, गालियां दें, पत्थर मारें, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो पीछे पड़ गए, पत्थर मारते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक लहूलुहान हो गए। अल्लाह अकबर, नालैने मुबारक खून से भर गईं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस शदीद तकलीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से बाहर निकलकर एक बाग में पनाह ली। जी, वो उतबा और शेबा बन रबिया का बाग था। वो भी मक्का के सरदार थे। वहाँ दीवार के साए में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर दुआ मांगी। जी, वो दुआ तो कमाले अब्दियत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल का नमूना है। ऐ अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमजोरी, अपनी बेसरो सामानी और लोगों की नजरों में अपनी बेवकती का शिकवा करता हूँ। ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी बेगाने के जो मुझसे तुर्शरोई से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर काबू दे दिया है? और फिर वो जुमला, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वुसअत रखती है। सुभान अल्लाह, मैं तेरे चेहरे की उस नूर की पनाह मांगता हूँ जिससे अंधेरे रोशन हो जाते हैं, कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या तेरा इताब मुझ पर आए। मैं तुझे मनाता रहूंगा यहाँ तक कि तू राजी हो जाए। तेरे सिवा ना कोई ताकत है ना कुव्वत। इस वाक़े में अगर हम गौर करें ना, तो बहुत से सबक हैं। जी, क्या सबक है? पहला तो ये कि इतनी मुखालफत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत नहीं हारे। जी, मक्का से निकलकर ताइफ गए। ये आपके अज़्म को दिखाता है सही कि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तलाश करो। बिल्कुल। दूसरा, बनु सकीफ ने बच्चों और नादानों को इस्तेमाल किया। ये बुराई की फितरत है कि वो ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करती है। तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, लेकिन आपको भी तकलीफ पहुंची, खून बहा। अल्लाह की राह में आजमाइशें आती हैं, ये सुन्नत है। ये बहुत अहम नुक्ता है। और चौथा, वो दुआ, खास तौर पर वो जुमला, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। असल फिक्र अल्लाह की रिजा है, दुनिया की तकलीफें हेच हैं। बिल्कुल। ये दुआ अल्लाह पर भरोसा, उसी से मदद मांगना और सिर्फ उसी की नाराजगी से डरना सिखाती है। अच्छा, इसी बाग में एक छोटा सा लेकिन अच्छा वाकया भी हुआ था ना? जी हाँ, वो अदास वाला वाकया। बाग के मालिकों ने अपने एक ईसाई गुलाम अदास को अंगूर देकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया तो वो हैरान हुआ। जी, क्योंकि वहाँ ये रिवाज नहीं था। उसने पूछा, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और अपने भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जो अदास के इलाके निनवा से थे। और वो मुसलमान हो गया। जी, वही मुसलमान हो गया। ये एक छोटी सी कामयाबी थी, लेकिन उस वक्त बहुत हौसला अफजा थी। ये दिखाता है कि अल्लाह कहीं से भी खैर का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल, और हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। इन सब मुश्किलात के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा इनाम दिया, एक तसल्ली दी, इसरा और मेराज का वाकया। जी, ये एक अजीमुशान मौजज़ा है, इस्लामी तारीख का एक मुनफरिद वाकया। इसका वक्त हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले का बताया जाता है। जी, नबूवत के 10वें या 11वें साल में। और जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि ये सफ़र रात में बेदारी में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ। इसरा यानी रात का सफ़र मक्का से बैतुल मक़दस तक। जी, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा बुराक पर, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। और मेराज यानी बुलंदी का सफ़र, आसमानों की सैर। जी, मस्जिद अक्सा से आसमानों के तरफ।
मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें हुई, जन्नत दोज़ख देखी, सिदरातुल मुंतहा तक गए, अल्लाह से बात की। और इसी रात वापस मक्का भी आ गए। जी हाँ, ये पूरा सफर एक ही रात के एक हिस्से में हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बताया तो उन्होंने तो यकीन नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, शदीद मजाक उड़ाया, नामुमकिन कहा, ताने दिए। कुछ कमजोर ईमान वाले शक में भी पड़ गए। लेकिन हजरत अबू बकर, हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो सच फरमाया है। मैं तो इससे भी ज्यादा अजीब बातों पर उनकी तस्दीक करता हूँ। जी, यानी वही पर। इसी दिन से उनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मौजज़े में क्या हिकमतें हैं हमारे लिए? देखें, इसमें बहुत से असबाक हैं। माखज़ ने 3 खास नुकात बताए हैं। जी। पहला तो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा का ताल्लुक, ये इस्लाम में फ़लस्तीन की अहमियत बताता है। गोया फ़लस्तीन का दिफा इस्लाम का दिफा है। ये बहुत अहम नुक्ता है आज के दौर में भी। बिल्कुल। दूसरा, ये मुसलमानों को बुलंद हिम्मती सिखाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए, मुसलमान भी दुनियावी चीजों से बुलंद होकर आला मकासद के लिए कोशिश करें, अपनी सोच को बुलंद रखें। जी। और तीसरा, ये एक तरह से खला की तस्खीर का इशारा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़े से गए, आज इंसान इल्म से कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प। और इसी सफर में नमाज का तोहफा मिला, लेकिन अल्लाह ने कहा अज्र 50 का ही मिलेगा। इसकी क्या हिकमत थी कि नमाज मेराज पर फर्ज हुई? इसमें एक बड़ा लतीफ इशारा है। गोया अल्लाह कह रहे हैं कि अगर मेरे नबी जिस्म रूह से आसमानों पर आए तो तुम यानी उनके उम्मती रोज 5 बार अपनी रूह और दिल से मेरी तरफ बुलंद हो सकते हो। नमाज मोमिन की मेराज है। बिल्कुल, ये रूहानी बुलंदी तुम्हें गुनाहों से बचाएगी, अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाएगी और जमीन पर अच्छे काम करने की ताकत देगी। अच्छा, इसी दौरान मक्का में तो मुश्किलात थीं, लेकिन मदीना में यानी यसरब में इस्लाम के लिए रास्ते खुल रहे थे। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हज पर आने वाले कबीलों को दावत देते। मिना में उकबा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई यसरब से आए कुछ लोगों से। जी, कबीला खजरज के 6 या 7 नौजवान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, कुरान सुनाया और वो फौरन मुसलमान हो गए। हाँ, क्योंकि यसरब में यहूदी रहते थे। वो एक नबी के आने का जिक्र करते थे। उन नौजवानों ने पहचान लिया कि ये वही नबी हैं और उन्होंने सोचा कि यहूदी हमसे पहले ईमान न ले आएं। बिल्कुल, वो वापस गए और यसरब में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। इससे क्या सबक मिला? वही कि दाई को हर जगह कोशिश करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह कहीं से भी मदद भेज सकता है। ये चंद लोग एक इनकलाब का आगाज बने। फिर अगले साल 12 लोग आए यसरब से। जी, नबूवत का 12वां साल। औस और खजरज दोनों कबीलों से थे। उन्होंने उकबा पर बैत की। इसे पहली बैत उकबा कहते हैं। ये ज्यादातर अखलाकी बातों पर थे। जी, शिरक ना करना, चोरी, जिना, कत्ले औलाद से बचना, बहतान ना लगाना, नेकी में इताअत करना। और इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। जी, इस्लाम के पहले सफीर और मुअल्लिम बनाकर, ताकि वो यसरब में लोगों को कुरान सिखाएं, दीन बताएं और दावत दें। और हजरत मुसअब ने वहाँ कमाल कर दिया। बहुत कमाल किया। वो मक्का के बड़े नाजो नेम में पले थे, लेकिन यथरिब जाकर बड़ी हिकमत और मेहनत से काम किया। इस्लाम तेजी से फैला, बड़े बड़े सरदार मुसलमान हुए। उनकी कामयाबी क्या जाहिर करती है? इखलास, हिकमत, नरमी और अच्छा किरदार दावत में कितना अहम है, और ये कि एक फर्द भी पूरे माशरे को बदल सकता है। पहले वो 7, फिर ये 12, फिर हजरत मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत। जी, ये सब मिलकर एक बड़ी तब्दीली ला रहे थे। और फिर आया नबूवत का 13वां साल, हज का मौका। जी, उस साल यथरिब से एक बड़ा वफ्द आया, तकरीबन 73 मर्द और 2 खवातीन। उन्होंने भी रात को खुफिया तौर पर अक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हजरत अब्बास भी साथ थे। जी, वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन भतीजे की फिक्र में साथ आए। इस मौके पर जो बैत हुई उसे दूसरी बैत उक़बा या बैत कुबरा कहते हैं। ये पहली बैत से मुख्तलिफ थी। जी, बहुत मुख्तलिफ। इसमें सिर्फ इखलाकी अहद नहीं था, बल्कि अंसार ने बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मक्का के मुसलमानों को यथरिब आने की दावत दी और हिफाजत का वादा किया। मुकम्मल हिफाजत का, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे, मानेंगे, माल खर्च करेंगे,
नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, अल्लाह की राह में किसी की मलामत से नहीं डरेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आएंगे तो आपकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपनी और अपने घर वालों की। ये तो एक तरह का मुआहदा हो गया, सियासी और दिफाई भी। बिल्कुल, ये एक फैसला कुन मोड़ था। इसकी अहमियत क्या थी? इसके नताइज क्या हुए? इस बायत ने असल में हिजरत का दरवाजा खोला। मक्का के मुसलमानों को एक महफूज ठिकाना मिल गया। मदीना? जी, यस्रिब अब मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने वाला था। ये वो मरकज बना जहां से इस्लामी रियासत कायम हुई, इस्लाम फैला और फिर शिर्क के खिलाफ वो जुदोजहद शुरू हुई जिससे इस्लाम को गलबा मिला। तो ये दूसरी बैत अक़बा हिजरत और इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। बिल्कुल, अल्लाह अंसार से राजी हो, क्या अजीम लोग थे, क्या कुर्बानियां दी उन्होंने, और महाजिरीन से भी राजी हो जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। तो आज हमने सीरत के एक बहुत ही मुश्किल लेकिन अहम दौर को देखा। जी, आमुल हुज़्न के जाती सदमात, लेकिन दावत जारी रही। ताइफ की आजमाइश, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ। फिर इसरा और मेहराज का इनाम, नमाज का तोहफा, फिलिस्तीन की अहमियत, और आखिर में उक़बा की बैतें जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद पैदा की और मदीना के नए दौर का रास्ता खोला। इन सब वाक़यात में ना एक चीज मुश्तरक है, इंसानी कोशिश, सब्र, तकलीफें। जैसे ताइफ का सफर, मुसलसल दावत। जी, और फिर अल्लाह की मदद, उसकी ताईद, जैसे इसरा और मेराज, जैसे अंसार का इस्लाम लाना। तो कोशिश अपनी जगह, मदद अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, और ये सबक भी कि जब रास्ते बंद लगें तो मायूस ना हों, अल्लाह पर भरोसा करके नए रास्ते तलाश करें। यही अंबिया की सुन्नत है। वाकई बहुत गहरे असबाक हैं। आज के इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को इससे फायदा हुआ होगा। यकीनन, और ये याद दहानी भी कि अल्लाह की मदद हमेशा अहले ईमान के साथ है। बस सब्र, इस्तिकामत और तवक्कल चाहिए। बिल्कुल। आखिर में हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये जो सब्र, इस्तिकामत और नए रास्ते तलाश करने के असबाक हैं, उन्हें हम अपनी जिंदगियों में कैसे ला सकते हैं आजकल की मुश्किलात में। जी, ये गौर करने की बात है। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, आपकी हौसला अफजाई से हमें मजीद ऐसे प्रोग्राम करने की हिम्मत मिलती है। अगली निशास्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।